have shortage of time, but still I want to hear Mr. Shiv Kumar Menwani. So please come on stage and speak, say few lines about the book Step And that was merely from experience. Right. Honorable people and respected all of you. I will start very short. I will talk 3-4 minutes point wise only. So the time is limited, so I will talk in short. It is like this. I will start from 1966. 1966, there was a lot of unemployment in engineers. But as India progressed, industrialization started, and slowly by 1969-70, there was no unemployment in engineers. That gives us a picture that industrialization is must for reducing unemployment. Now coming to the other part, quality of engineer at that time and quality of engineer at this time. In 1966, there was hardly some, if we count in whole India, there should not be more than 100 engineering colleges in whole of India. And if you count today, first I will say you cannot count it, because there are number of colleges where quality of engineer has reduced like anything. This is the first reason. And now I will give one very small example. I was about 10 to 12 years age, and I used to go in one RSS Shakha. One of my friend was moving to along with me. वो मेरे को क्या बोलते हैं कि आप बड़े होके क्या करोगे? मैंने कहा भाई, कहता है देखो आपके घर में आपकी 4 बहनें हैं, आपके पिताजी की कमाई इतनी तो है नहीं, इनकी शादियों में ही बहुत पैसे लगेंगे, आप ये कहाँ से लाओगे? मैंने कहा मैं बड़े होके इंजीनियर बनूंगा। उसने कहा इंजीनियर बनोगे क्या करोगे? तुम तो जो आरएसएस के आदमी हो, तुम तो रिश्वत खाओगे नहीं, किसी से पैसे लोगे नहीं, उसमें भी इतना पैसा तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। On a 10 to 12 year age, my target was to be an industrialist after doing engineering. So aim in the life is very important. It helps you to create lot of things and you proceed further. Now another thing, what is the problem today? Another problem is now we all consider white collar job. Engineer wants in service in bank, engineer want to be a IAS officer. Even you go to revenue services, you will find lot of engineers. So lot of quality engineers and lot of engineers are moving to USA and European market. So lot of engineers are going to the other fields, whereas the industry needs engineers, as Saxena ji explained it. But because you cannot find air conditioned factories on the shop floor level, there is the heat, there is the smoke, there is the pollution. So today's our जो बच्चे हैं उन चीजों को फील करते हैं कि अरे हमें तो ऐसे काम नहीं करना। तो ये भी एक वन ऑफ रीजन है कि भाई वो आगे बढ़ नहीं पाते। और एक लास्ट रीजन जो मैं फील करता हूँ कि अपना जो इंजीनियरिंग का पढ़ाया जाता है वो उसमें हम मतलब सब चीजें जोड़ लेते हैं। आज मैं यदि अपनी लाइफ में देखता हूँ तो मेरे को तो कम से कम सर्विस इंडस्ट्री से रहा तो 50% कम से कम यूज की चीजें रही।
यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओगे तो जो आपको पढ़ाया गया उसमें 20% भी काम नहीं आता। तो वो जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है सिस्टम, किसी पॉलिटिशियन को ये वक्त नहीं मिला कि किसी को लगा के इस सिलेबस को चेंज कराए, और राइट पर्सन के लिए राइट आदमी चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, उसको क्रिएट करें। इन माय ओपिनियन, यदि आप मेरा एक बुक पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप चाहेंगे तो किसी की इंटरेस्ट होगी तो मैं ऐसे भी दे दूंगा। मैंने कई लोगों को ऐसे ही बांटे भी हैं। तो उसमें आपको ये जो पॉइंट है, इसको पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है। एक कैरेक्टर लेके, रादर वो 95% मेरा ही कैरेक्टर है, और उसको मैंने एक स्टोरी में करके उसको बनाया है, और उसको पढ़ने से एक अलग तरह की आपको कई बातें इंजीनियर्स के बारे में मिलेगी। इतना ही कहकर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। Thank you very much, sir. Now, I would like to call Mr. Prem Bharadwaj, Gyan Bhikshu sir, on the stage to say few words on the book step. आदरणीय सक्सेना जी, मैंने तो आपकी पुस्तक पढ़ी नहीं है, तो स्टेप आउट में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर जितना मैं इतनी देर में देख सकता था, किताब जो कहती है और जो आपने कहा, आदरणीय शर्मा जी ने कहा, शिव जी ने कहा, उससे अंदाजा ये लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या कोई भी क्षेत्र में मास्टर कर लीजिए, और हमारी यूनिवर्सिटी के वो बैठे हैं, डायरेक्टर जनरल बैठे हैं, हर साल सर्टिफिकेट देने ही होते हो तो मजबूरी है। तो समस्या कहाँ से शुरू होती है, उस पर बात कर लेते हैं 2 मिनट। जो सर की किताब में समस्या यहाँ से शुरू नहीं होती, मैं स्विट्जरलैंड से शुरू करता हूँ। I've been there for a lecture as a guest lecturer, and I had a time to spend with a fellow like you person. I asked that how you run, universities and all that. You point it out. वो उनको जो हमारी यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट होती है सीटों की, जैसे मेडिकल लाइन है 400 सीटें मिलेंगी, तो 400 MBBS निकलेंगे। वहाँ ऐसा नहीं होता है। They generate the query from the market, whether how many maybe MBBS, for example, is required. If requirement is for this year, for feasible is 500 admission would be done, for example. That's why employment does not exist. They don't spare anybody. You get them pass out more than 1,000 students every year. Where they will go for the job? They don't have any place. But you still, your university have a power to again give the 1,000 certificate again every year. Okay? So the system, Sir Shiv Kumar ji pointed the very nice thing. The system should be calculated according to the time now. It is the time right on. अब आपकी पावर है, करवा दीजिए चीज। नहीं, पावर है आपकी, अभी आप करवा दीजिए आपकी। It is badly required. सारे यहाँ पे कुछ लेखक बैठे होंगे, कुछ पढ़ने वाले बैठे हैं जिन्होंने किताबें फर्दर लिखनी है, आपको देते सक्सेना साहब कुछ भी एक आध भी प्रेरित होगा जाएगा तो अनुराधा पब्लिकेशन के पास जाएगा। परसों मेरी भाई साहब से कुछ बात हो रही थी ऐसी, मैं कहा यार मैं बहुत साल पहले आपके कार्यक्रम में आया था, इतना सुंदर आप कर रहे हैं काम, आपको मिलता क्या है यार? एक किताब से कुछ नहीं मिलता, मैं जानता हूँ कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप चला रहे हो, अखबार भी चला रहे हो, मेरे ख्याल से अभी है वो चल रहा है अखबार भी चला रहे हो। मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ा सा इसको, जब तक आप किसी चीज को कमर्शलाइज नहीं करोगे, कुछ मेरा भी फायदा आपका भी फायदा, तब तक नहीं चलती कोई चीज। तो उस पर आप विचार करें, जो मैंने आपको आइडिया दिया था उसको आप करें। पर क्योंकि आप सबकी अपनी लैंग्वेज है बात करने की, मैं कविता के क्षेत्र से हूँ, तो मैं कविता में आपको एक अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि हरिवंश राय बच्चन जी से आशीर्वाद मिला,
तो अगर 1 मिनट और देंगे बेटे आप हमारे 1 मिनट, हाँ तो मैं उसमें ले रहा हूँ। वो ऐसा हुआ कि क्योंकि आज सक्सेना जी की किताब पे बात हो रही है, तो कोई कवि और लेखक, आप भी लेखक है, आप भी लेखक, ऐसे नहीं बनता है। वो कैसे बनता है? एक कथा प्रेम भारद्वाज की सुन लो। मैं केवल हाउस क्लास में मेरा घर था, मैं केवल 13 साल का था, 14 साल का है, तो वो डायरिया लिखने की आदत होती है ना सर, कुछ न कुछ लिख देते हैं। तो किसी ने कहा कि वो सामने गुलमोहर पार्क में हरिवंश राय बच्चन साहब वहां रहते हैं। मैंने उनकी मधुशाला कहीं 2-4 पेज पढ़े थे, तो मैंने कहा सर मैं भी तो कवि हूँ। मैंने अपनी डायरी उठाई और उनके दरवाजे पर चला गया। A51 नंबर उनकी कोठी है, अभी है, अब तो बेच दी उन्होंने, वहां चले गए। तो गार्ड कहने लगे बेटे ना दाढ़ी ना मुंह चली तेरी, तुझे कहाँ से सूझ गई कविता लिखने की? मैं कहा सर मैं कवि हूँ, आप ये पर्ची भेज दीजिए सर, लिख दीजिए, बता दीजिए प्रेम भारद्वाज कवि मिलने आया। 14 साल की 13 साल की उम्र में आप समझिए क्या बात है। सक्सेना, विजय सक्सेना बनने के लिए भी टाइम चाहिए, बहुत लंबा ऐसे ही नहीं बनाया उन्होंने, कितना एक्सपीरियंस पीछे होगा। आपने तो 20, 22, 25 लिखी है शायद, बहुत मुश्किल है लिखना। तो मैं आपको उस बेस का बात बता रहा हूँ। यहाँ पे बैठा कोई अगली हो सकता है अनुराधा प्रकाशन की किताब कोई आप में से कोई निकाल रहा हूँ। तो मैं आपको कथा क्यों सुना रहा हूँ कि वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मनमोहन जी को। आज वो बात उन्होंने कहा बेटे आप तो नहीं मिल सकते, गार्ड बोल रहा है मुझे आप नहीं मिल सकते। मैं कहा मुझे मिलना है। मैं 5 बार चला गया। उसने देखा ये बच्चा मासूम है, बात को कुछ, पर उसने कहा ऐसा मेरा नाम नहीं लोगे तो आपको बताऊं। मैं कहा बोलो। वो सामने पार्क है, गुलमोहर पार्क बोले। हाँ 5 बजे अपने दोस्तों के साथ वो वॉक करके जाते हैं, पर इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं मेरा तो काम हो गया इतने, मैं चला गया 5 बजे में 3 बार गया। तो हाँ मैं पहचानू, किताब के कवर पे नाम उनकी फोटो नहीं थी, स्केच था, तो मैं फोटो से भी नहीं पहचान पा रहा घर से कौन है। तो अंदाजा लगा लिया मैंने, ये 4-5 बुजुर्ग बैठे इनमें से एक है। उनमें एक धर्मवीर भारती साहब थे, मतलब उनका संगत देखे ना कौन लोग। खैर मैं गया, मैंने अपनी डायरी निकाली और मैंने कहा सर प्रणाम, मैं आपसे बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ, मिल नहीं पा। उन्होंने क्या करते हो? मैं कहा मैं लिखता हूँ। बोले स्कूल नहीं जाते? क्योंकि अभी उम्र तो 12-13 साल की है। बोले हाँ। मैं कहा जी मैं लिखता भी हूँ, मैं थोड़ा स्कूल भी जाता हूँ। बोले क्या लिखा है? तो मैंने कुछ जो लिखा होगा पढ़ाया उनको। तो उन्होंने इतना कहा, उनको अंदाजा लग गया, ये इन्होंने फिल्मी गाने सुने, इसने इधर उधर की बातें सुनी है, इसमें से कुछ धारा इधर से उधर से मिला के लेके आ गया। तो उन्होंने ये कहा बेटे ये किसने लिखा? मैंने कहा जी मैंने लिखा है। बोले नहीं आप ना कुछ नया लिख के लाओ। उन्होंने मुझे टालना, और जाते समय कंधे पे हाथ रखा। बोले मगर मैं आपके हौसलों की दाद देता हूँ आप। मैंने कहा जी मैं तो लगा हुआ महीने से आपको मिलने के लिए, और मैंने मधुशाला की 2-3 लाइनें याद कर रखी थी, मैंने सुना दी। तो एक तरीके से उनको लगा कि कुछ तो मतलब कर रहा है, प्रयास की हाँ प्रयास कर रहा है। तो सर मैं चला गया। रात को मेरे पिताजी कह रहे सो क्यों नहीं रहा भाई? मैं कहा नहीं कल मुझे किससे मिलना है। अपने 50 पन्ने फाड़ डाले, ये लिखूं फिर ये लिखूं। पर उस रात उन्होंने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा था, वो उन्होंने कहा था कि मैं बेटे तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। तो मैं उसी रात एक कविता, एक गजल, नज़म जो भी आप कहो, मैंने लिखी। और उसकी 2 पंक्तियां आज मैं मनमोहन जी को, शरण जी को इसलिए देना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई गुरु मिला था। उन्होंने तो इतना ही कहा था मुझे, मैंने परसों इनको बहुत कुछ कहा है, तो शायद एक पंक्ति इनके काम आ जाए। वो पंक्ति है गुरुदेव कि हौसले रख बुलंदी पर, तमन्नाएं जवां होंगी, जो कल थी आसमानों पर वो शायद कल यहाँ होगी। न कर मायूस यूं दिल को, अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। और जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। और सुबह ऐसी नहीं होती, उसके लिए जो सर कह रहे थे डेडिकेशन चाहिए। वो जो फार्मूला ये दे रहे थे इनके ज्ञान कुंज में से वो ले लो। और आज के जो दूल्हे हैं, दूल्हे ही बोलते हैं ना जिनके पुस्तक का विमोचन होता है, दुल्हन का भी चर्चा होनी चाहिए, दुल्हन की भी हमने सुननी थी, मगर मीनू नाम ही नाम लिखा, आपने बोला कुछ नहीं। पर एनीवे
बात मैंने मनमोहन जी की बात इसलिए करी, बहुत मेहनती इंसान है, मैं बहुत बार मिला हूँ, बहुत इनके कर वो देखे हैं कि भाई लगे रहते हैं। और पब्लिकेशन एक ऐसा थैंकलेस जॉब है। सर की 20-25 किताबें आई हैं, हर जगह हम बार्गेनिंग करते हैं। पहले अगर इनके पास किताब लेके जाएंगे तो 100 पेज के 80 पेज के पैसे देने की बात करते हैं। अपना भी सिस्टम यही होता है ना, सबका उससे भी करते हैं। हाँ, मतलब कोशिश यही करते हैं हम, तो उसमें कोई कमाई नहीं है, मगर चलाए रखना। मैं 8-10 साल पहले इसे किसी कार्यक्रम में इन्होंने बुलाया मुझे, आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम, बहुत तगड़ा कार्यक्रम था, मैं गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप तो ये करें, न कर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। ये हमारा भी यकीन है। ये मुझे उनसे मिला था, तो जब मैंने मैं जब अगले दिन लेके गया इसको, तो उन्होंने मुझे कहा बेटे तुम बहुत बड़े ज्ञान मिक्स हो यार, तुम तो पूरा उतार रहा है मेरी एक लाइन में से। मैंने कहा जी आपने कहा था आपके हौसलों की खाद दे, तो मैं हौसलों पे लिख के लाया हूँ। तो ये जो गुरु कहाँ से मिलता है, वो जो आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, एकलव्य के बारे में पढ़ा होगा, वो कौन सा हमको सिखाने आया था, वो दूर से देख रहे थे। जब वो वहां से देख के सीख सकते हैं, तो हम जैसे शर्मा जी जैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गुरुदेव आपके लिए ये है कि आप अगला कार्यक्रम फिर करें, बड़ा करें, जो मैंने शेयर किया वैसा करें, और एक आध इसी भीड़ में से कोई 4-5 और कवि और लेखक पैदा करें, क्योंकि वो आपके अंदर पावर है, आप मोटिवेट कर सकते हो। विजय सक्सेना में सक्सेस लिखा हुआ ऑलरेडी, और ये भी कई सारी किताबें लाएं, इस पे खत्म न हो जाए। स्टेप आउट के बाद भी सर ने कहा स्टैंड अप पे भी आ जाए, स्टेप अप ये करवाएंगे। हाँ ना, स्टेप आउट तो निकल आए, निकलने के बाद कुछ करें। अब मैं एक पंक्ति कह के और फिर मैं अपना स्थान लूंगा, और वो मैं विजय सक्सेना जी को डेडिकेट करता हूँ। मेरी कविता नहीं है, किसी और की है, मगर वो अच्छी है और अच्छी चीज सब में बढ़ जानी चाहिए। तो वो पंक्ति यूं है सर कि खुद में एक कबीर जिंदा रख। क्या बात है। खुद में एक कबीर जिंदा रख, बादशाह भी बन जाए तो खुद में एक फकीर जिंदा रख। खुद में एक कबीर जिंदा रख, बादशाह भी बन जाए तो खुद में एक फकीर जिंदा रख। तेरे बाद तुझे दिल में रखेंगे लोग, तेरे बाद तुझे दिल में रखेंगे लोग, दिलों में कुछ ऐसी तस्वीर जिंदा रख। अंतिम पंक्ति है इसकी, वो सुन रहे हैं, वो अपने साथ लेके जाओ कि चुनौतियां आएंगी आके तेरे कदमों को चूमेंगी। चुनौतियां आएंगी आके तेरे कदमों को चूमेंगी। उम्मीदों की तरकसों में कोशिशों के तीर जिंदा रख। उम्मीदों की तरकसों में कोशिशों के तीर जिंदा रख। ये जो प्रयास है आपके, ये जिंदा रहे। आपने आज हमारे को एक पुस्तक भेंट करी है, हो सकता है यहाँ से कितने ही ऐसे यहाँ पे होने वाले लेखक बैठे होंगे जो इस किताब से मोटिवेट होंगे, और एक दिन वो एक कहेंगे कि यार विजय सक्सेना जी से हमें प्रेरणा मिली थी। मैंने आज अपने गुरु का नाम लिया है, कौन जानता है कि कल कौन आपका नाम ले रहा होगा। धन्यवाद, प्रणाम, आपका आशीर्वाद। धन्यवाद।